Hello friends, so in today's class we are going to discuss the topic that you might have taken today in your exam. So let's see what the topic was कि उसमें क्या क्या लिखना था आपने, क्या उसमें points आ सकते हैं, तो वो अब सब हम discuss करते हैं. So first we'll have a look towards the topic. The topic was in many parts of the world children and teenagers are committing more crimes. तो दुनिया के बहुत सारे हिस्सों के अंदर, बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर, बहुत सारे प्लेसेस पर जो टीनेजर्स और चिल्ड्रन हैं वो ज़्यादा क्राइम कर रहे हैं. सो दिस इज़ व्हाट अ प्रॉब्लम दैट दे हैव प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ अस. हमारे सामने एक प्रॉब्लम रखी गई है कि ऐसा होता है एंड वी आर देयर टू एडमिट इट. येस, इट हैपन्स. Okay, so this is the problem. Now what they are asking, why is this happening? Why means they are asking the reasons. हमने रीज़न डिस्कस करने हैं. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इंक्रीजिंग रेट ऑफ क्राइम कमिटेड बाय यंगस्टर्स एंड टीनेजर्स. Then the next they are asking, how should children or teenagers be punished? Now here there is a little twist that they have given in the question. Generally वो ये पूछते हैं कि इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं. What can be done to overcome this situation? So what can be done? फिर उसमें आप देते हैं भी पेरेंट्स को बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. So now here the twist is they are not asking कि इसको ठीक कैसे करना है. They are straight away asking about the punishment. Okay, like how should children or teenagers be punished? So we shouldn't talk about anything else. We shouldn't be talking about counseling and all कि counseling होनी चाहिए या इस टाइप से बड़ा उनको प्यार मोहब्बत देने की ज़रूरत है. We will be only talking about the sort of punishment that they deserve. Right? अब हम बात करते हैं when you are going to start the introduction. So since this is a problem that must be admitted, that must be accepted, we'll start like there is no iota of doubt. No iota of doubt means इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा हो रहा है. ये जो क्राइम है टीनेजर्स या चिल्ड्रन वो ज़्यादा कर रहे हैं. इंस्टेड ऑफ दैट इफ़ यू वांट यू कैन राइट नो वन कैन डिनाई द फैक्ट दैट. सो दिस इज़ अ फैक्ट, नो वन कैन डिनाई, कोई मना नहीं कर सकता. नीडलेस टू से मतलब कहने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा होता है. सो नीडलेस टू से या फिर इट गोज़ विदाउट सेइंग, कहने की ज़रूरत नहीं है. ये दोनों भी हम फ्रेजेस तब यूज़ करते हैं जब हमने एक ऐसे स्टेटमेंट की बात करनी है, एक ऐसे ओपिनियन की बात करनी है जो एक्सेप्टेबल है कि हाँ जी ऐसा होता है. ठीक है. दैन वी कैन यूज़ अनडाउटेडली अगेन विदाउट अ डाउट. It is acceptable that. Okay. Then we have a term called juvenile delinquency. So juvenile delinquency is what? Juvenile delinquency is exactly when we talk about the crime which are committed by youngsters and children. So when youngsters and children are there to commit the crime, that is known as juvenile delinquency. So अगर क्वेश्चन में juvenile delinquency लिखा हुआ है या फिर children and teenagers committing crime, both are having the same meaning. ठीक है. अब हम बात करते हैं इसके रीजंस की कि इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं. व्हाट आर बेसिकली द साउंड एंड सॉलिड रीजंस फॉर दैट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस इज अ वरिंग इशू और दिस इज अ बर्निंग इशू. एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. क्यों है? सो द फर्स्ट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट ड्राइविंग फोर्स. So instead of asking the first reason, you would say that the most significant driving force is lack of parental care. Lack means कमी, parental care की कमी है क्यों? ठीक है. We are going to discuss that why this is happening. So in these days, if we talk about like both of the parents, mother and father, they both are working. So they are working throughout the day, and why they are working? Because they are forced to work somewhere. काम उनको करना पड़ता है टू मेक देयर बोथ एंड्स मीट. मेक बोथ एंड्स मीट मीन्स सर्वाइव करना, टू मैनेज विद ऑल द एक्सपेंसेस, टू मैनेज विद द इन्फ्लेशन. बच्चों की डिमांड भी बढ़ गई है, उनकी जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, एवरीथिंग इज़ बिकमिंग एक्सपेंसिव दीज डेज. तो उसकी वजह से काम करना एक तरीके से उनकी कई बार मजबूरी बन जाती है. एंड एट द अदर हैंड इफ़ यू टॉक अबाउट देयर आर सम पीपल हु आर वर्क ओरिएंटेड, जो वर्क ओरिएंटेड होते हैं, हु गिव प्रेफरेंस टू देयर वर्क देन फैमिली. ठीक है. तो दोनों ही सिचुएशंस हैं. सो लैक ऑफ पेरेंटल केयर. सो कंटेम्प्रेरी पेरेंट्स, कंटेम्प्रेरी मीन्स मॉडर्न, आजकल के ज़माने के जो पेरेंट्स हैं, दे पाइन फॉर वर्क एंड प्रमोशन. पाइन मतलब आर इंटरेस्टेड, हैव अ लॉन्ग डिज़ायर. तो उनमें उनका इंटरेस्ट किस में होता है? वर्क. उनका इंटरेस्ट होता है प्रमोशन. So they want to enjoy that work freedom. They want to enjoy that
हायर स्टेटस इन द सोसाइटी ड्यू टू देयर वर्क। ठीक है, तो उसकी वजह से अब जब फोकस वर्क के ऊपर है तो क्या होगा, बच्चों पे ध्यान कम दे पाएंगे, दे विल बी फोकसिंग ऑन देयर वर्क वेदर दे आर इन द हाउस और वेदर दे आर एट ऑफिस। ऑफिस में है फिर तो काम करना ही करना है। इनफैक्ट वेन एवर दे आर एट होम दे माइट बी बिजी वर्किंग ऑन देयर प्रोजेक्ट एंड समथिंग। Because of that, they do not give a lot of proper attention to their children, and in fact if they are paying attention, they pay attention on physical conditions only. वो बच्चे को अगर attention देते हैं तो physical condition पर, कि बच्चा ठीक ठाक है, चोट तो नहीं लगी हुई है, बच्चा ठीक है, अच्छे से खा पी रहा है, healthy है, that is enough for the parents. But they actually ignore the psychology, the psychological well-being of the children, कि बच्चा psychologically healthy है या नहीं है, what kind of thoughts are harboring in the minds of their children. तो बच्चों के माइंड में किस तरीके के थॉट्स घर कर रहे हैं, घर करना इज हार्बर। ठीक है, तो वो चीज़ वो नहीं फोकस कर पाते हैं, और इस गाइडेंस की वजह से व्हेन चिल्ड्रन दे फील अनलव्ड, they miss that love and attention from their parents, they start deviating, they start getting in contact with the other people around them who might be having some evil intentions, and gradually they'll drift their ways apart. ठीक है, तो फर्स्ट पेरेंट्स फोकस नहीं करते हैं उसकी वजह से। So second we'll talk about social media. So social media is to be considered the culprit for that. So it plays an integral and inevitable role. Integral and inevitable, necessary, essential और मैंडेटरी। तो वो सोशल मीडिया अपना काम करता है। सोशल मीडिया में हम इंक्लूड करेंगे जितना भी गूगल पे आप देखते हैं, चाहे वो हम टेलीविज़न की बात कर लेते हैं, चाहे वो मूवीज़ हैं, चाहे वो वीडियोज़ हैं, या फिर कुछ भी है, राइट, वट एवर दे आर हैविंग ऑन टू देयर मोबाइल विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, एवरीथिंग कम्स इन टू दैट। एंड अनदर प्रोवर्ब, द फर्स्ट प्रोवर्ब हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इज सीइंग इज बिलीविंग। That is in fact more powerful in case of children and teenagers since they are innocent. इतने innocent होते हैं, उनको दुनियादारी की खबर नहीं होती है। And seeing is believing मतलब आंखों देखी बातों पर हम यकीन करते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, जो भी वो प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर वो गेम्स खेल रहे हैं, तो वो अब हर एक चीज़ के अंदर आजकल वायलेंस है। वायलेंस, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गेम है, गेम में भी क्या होता है, इसे मार दिया, उसे उड़ा दिया। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स दे स्टार्ट गेटिंग डीप इनटू देयर माइंड। उनको क्या लगता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, मारना पीटना, लड़ाई झगड़ा करना, इट इज़ क्वाइट फन। किसी को मार दिया, हम भी मर गए, कोई बात नहीं, गेम में चलता रहता है, फिर से जिंदा हो जाते हैं। सो सिंस दे स्पेंड hours on end on these games, when they watch movies, when they watch like these kind of programs, violent programs, it have a deep impact on their brain. अब बहुत सारी मूवीज़ हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हैं, जिनमें दिखाया जाता है कि क्राइम कैसे हुआ। सो द एंटायर प्रोसेस इज प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ व्यूअर्स, एंड व्हाट द क्रिमिनल माइंडेड, द क्रिमिनल टेंडेंसी पीपल डू। जो क्रिमिनल माइंडेड, एज छोटी है लेकिन दिमाग तो वो है ना शैतानों वाला, तो वो क्या करते हैं, दे गेट दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कि ये चीज़ ऐसे करते हैं, तो दे गेट एन आइडिया कि ये क्राइम करना कैसे है, एंड दिस इज़ हाउ दे स्टार्ट प्लॉटिंग द थिंग्स। फिर वो क्राइम करना शुरू कर देते हैं। अब वो कर क्यों रहे हैं, बहुत बार उन्हें पता नहीं होता, दे डोंट हैव अ साउंड रीज़न फॉर दैट। रीज़न कुछ भी नहीं है, इट इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, मज़ा बड़ा आता है, ऐसा कर सकते हैं। दैन दे डोंट कंसीडर द रिजल्ट ऑफ देयर डीड्स। उनको ये नहीं समझ में आ रहा होता, अगर हम ये काम करेंगे तो इसका नतीजा क्या होगा, दैट दे आर नॉट अवेयर ऑफ, राइट। So this is what we are talking about. So exposure to violent programs, they get an exposure कि हाँ जी ये चीज़ ऐसे होती है तो हम भी कर लेते हैं। So they consider it a fun loving, चलो ठीक है बड़ा मज़ा आएगा, चलते हैं हम ये करते हैं। But actual में whatever they are doing that is going to impact on their life, might be they gonna spoil their entire life. They won't realize that gravity of the situation. तो वो नहीं कर पाते because उनका mind इतना डेवलप नहीं है। Since they have a nature of imitating, imitate करना, follow करना, नकल करना, वो एक आदत है। अब बच्चा सीखता कैसे है, बच्चा नकल करके सीखता है, चाहे वो बोलना है, चाहे वो चलना है, कुछ भी है तो वो नकल करके। And this is what children are following these programs. ठीक है, am I clear?
So the next we'll talk about poverty, that is to be considered another reason, poverty, just in order to obtain money. So if they are feeling hungry, so when they see the other people are enjoying but they do not have resources for that, so they start stealing it. Why? Because they just want to satisfy, they just want to quench their hunger. तो उसके लिए वो चोरी करना शुरू कर देते हैं. एंड अनदर फोर्थ वी आर टॉकिंग अबाउट इज पीयर प्रेशर. So under peer pressure, what happens? They start going for drugs. They might go for smoking, drinking. There are many ill activities or misdeeds they start engaging in. So it basically starts with a kind of experiment. It starts with an adventure. So adventure seeker जो होते हैं या फिर experiment, under the peer pressure they start taking these things, okay? But gradually they become habitual, and in order to purchase such things, they need huge amount of money. And the money comes from where? By committing crime. Okay, so this is how peer pressure, it's going to put a long lasting impact on their life. ठीक है, it's not going to happen in a day. Immediately कुछ भी नहीं होता है, it takes time. ठीक है, तो टाइम लगता है, धीरे धीरे वो उसके इन्फ्लुएंस में आते हैं फ्रेंड सर्कल के. दैन दे माइट स्टार्ट स्मोकिंग, दे माइट स्टार्ट टेकिंग ड्रग्स फॉर अ पर्टिकुलर टाइम. माइट बी दे हैड अ फाइट विद देयर पेरेंट्स, कि पेरेंट्स के साथ किसी बात पे डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा हो गया. देन फ्रेंड्स ऑफर कि चल कोई बात नहीं, चिल करते हैं, राइट. सो दिस इज हाउ दे स्टार्ट द थिंग. बट ग्रेजुअली उसका इम्पैक्ट कितना सीवियर आता है या उनकी लाइफ उनको कहाँ ले जाती है वो उनको रियलाइज नहीं होता. एंड व्हेन दे आर एट द स्टेज ऑफ रियलाइजेशन, it would have been very late for them. Okay, now we'll talk about the solutions. So not exactly the solutions, we'll be talking about punishment. What sort of punishment should be given? So when we say one size doesn't fit all, right, so that is the same thing. There is not any one sort of punishment. कोई ऐसी एक punishment नहीं है जो हर किसी को सूट करेगी. हमने क्या करना है, या बेसिकली टॉपिक के अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर रहे हैं. व्हाट शुड बी डन? द वेरी फर्स्ट इज द ग्रेविटी ऑफ दैट क्राइम और द सिवियरिटी ऑफ द क्राइम शुड बी कंसीडर्ड, कि उसने किया क्या है. क्या वो शॉपलिफ्टिंग है? शॉपलिफ्टिंग मतलब किसी की दुकान से सामान उठा लेना. तो कोई वो किया है, पिक पॉकेट है, या फिर वो मर्डर है, या फिर वो रेप है. तो वो किस टाइप का क्राइम, किस टाइप का ऑफेंस है. तो जितना सीरियस, जितना हीनियस ऑफेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग पनिशमेंट भी होगी. बिकॉज पनिशमेंट इज अ डेटरेंट टू क्राइम. डेटरेंट मीन्स रोकना किसी चीज़ को. ओके, सो द फर्स्ट काइंड ऑफ पनिशमेंट वी टॉक अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट द माइनर ऑफेंसेस. माइनर ऑफेंसेस लाइक जैसे शॉपलिफ्टिंग की हम बात करते हैं कि दुकान से कोई सामान उठा लिया, ऐसे छोटा मोटा. We are not talking about diamonds and gold jewelry. So minor offenses like, so these should be ordered to do community service. So in that case जो youngsters हैं, teenagers हैं, उनसे community service, उनसे voluntary work करवाना चाहिए. Because this is how they have to work. उनको काम करना पड़ेगा. They'll realize कि यार जो किया था वो गलत था, दोबारा से नहीं करना है. So this is how they come to the realization. Okay, so that is again a sort of punishment, to ask them to go for the voluntary work that they might not be interested in, but still they have to do it. Why? Because they have committed something wrong, right? So the second we talk about, they should be sent to rehabilitation centers. So rehabilitation center sending is again a kind of punishment for them. Why? Because they are away from their family. वो अपनी family से दूर हैं, अपने फ्रेंड से दूर हैं, एंड मोर ओवर दे आर इन अ सॉर्ट ऑफ एनवायरमेंट दैट दे डू नॉट लाइक टू बी. इट इज़ नॉट एग्जैक्टली अ जेल नहीं है, लेकिन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स वेयर द एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड टू रिफॉर्म देम, उनको सुधारने के लिए की जाएंगी. लेकिन अगेन दिस इज़ अ पनिशमेंट फॉर देम. पनिशमेंट क्यों? क्योंकि अपनी फैमिली से दूर हैं, दे डोंट लाइक टू गेट हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, पार्टीज करना, फास्ट फूड खाने को मिलना. सो दे वोंट बी गेटिंग एनीथिंग these kind of facilities over there. So that is a punishment. Correct. Then the next we talk about for the heinous crime. Heinous crime बहुत serious crime. ठीक है, सीरियस में जैसे हम बात करते हैं मर्डर है या फिर रेप है. अब जब इस टाइप के सीरियस केसेस हैं उसमें क्या किया जाना चाहिए? दीज चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स दे मस्ट बी कंसीडर्ड एज एडल्ट. उनको एडल्ट कंसीडर करके उसी टाइप की जो सेम पनिशमेंट है या फिर सेंटेंस है दैट शुड बी अवॉर्डेड. अवॉर्डेड मीन्स देना, जैसे सजा देना.
तो अब जब क्राइम इतना सीरियस वो कर सकते हैं तो ऑब्वियसली सज़ा भी इतना सीरियस वो भुगत सकते हैं, दे आर लाइबल फॉर दैट, दे आर अकाउंटेबल, तो वो उस टाइप की पनिशमेंट उनको देनी चाहिए। सो पनिशमेंट हम डिस्कस की है, हमने पनिशमेंट दी है, कम्युनिटी सर्विस करना दैट इज़ अ पार्ट ऑफ पनिशमेंट, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भेजना वेयर दे आर अवे फ्रॉम ऑल द फैमिली, लव अफेक्शन एवरीथिंग, और माइट भी फिर उनको सज़ा देना, जेल भेजना, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जो भी वो डिजर्व करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ द टॉपिक वी डिस्कस्ड कि रीजंस क्या हैं क्राइम करने के, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के, और उसको किस टाइप की पनिशमेंट से हम ठीक कर सकते हैं। सो आई होप माई पॉइंट्स आर क्लियर टू यू, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल and do share this video with your friends so that they can also learn. So I wish you all the best for your result and keep learning with me. All the best.